अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑन द abolition ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट 1969 by Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o was one of the leading Kenyan author and a novelist. In 1969, he wrote this proposal. Basically, this was a proposal which later became very famous for literary text. So let's begin and talk about Ngugi wa Thiong'o, his life sketch, and we are going to learn about his literary text. Before going through that novel, we have to look at his life sketch. इसको हम थोड़ी सी जो है वो इसके लाइफ के ऊपर नजर डालेंगे. Ngugi Thiong'o, original name James Thiong'o Ngugi, 1938, Kenya. He was a Kenyan author, novelist, and his original name was James Thiong'o Ngugi. Later, he replaced that original name into his traditional name Ngugi wa Thiong'o. और यही जो है वो इस बंदे की ब्रिलियंस है कि इसने बहुत सारे जो इंग्लिश नाम या बहुत सारी जो इंग्लिश चीज़ें उनको रिप्लेस करके अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को कायम करने की कोशिश की. He was considered East Africa's leading novelist, and just because of that, certainly he was very famous. He was liked by people. As he became sensitized to the effects of colonialism in Africa, he was too much sensitive. And he tried to raise his voice against colonialism in East Africa, because कीनिया जो है वो ईस्ट अफ्रीका में आता है. तो इसने जो है वो ज़्यादातर कोशिश की कि कॉलोनियलिज्म जो कि उस वक्त जो है 20th सेंचुरी में, आपको पता है कि अफ्रीका हो, एशिया हो, और बहुत सारे ममालिक इनके ऊपर ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स का रूल था, जिसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता था. तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के खिलाफ बात की, और इंग्लिश जो कि इनके कंट्री के अंदर राइज होने जा रही थी, इसके खिलाफ बात की. Just because of these contributions, he became so famous. Nagagi received bachelor's degrees from Makerere University, Kampala, Uganda. इसकी जो बैचलर डिग्री है वो तो युगांडा से है, बट इन 1963, एंड फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी, यॉर्कशायर, इंग्लैंड, इन 1964. मगर इन्होंने 1963 में इंग्लैंड से जो है वो डिग्री भी की, और 1964 में इन्होंने जो है वो लीड्स यूनिवर्सिटी से डिग्री भी जो है वो की. तो वहाँ से ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इंग्लिश में डिग्री की, और ही केम टू नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर द नेशन. He served as a lecturer and chairman in English at University College in Nairobi, Kenya. और ये अपने मुल्क वापस आए और अपनी यूनिवर्सिटी में पहले लेक्चरर और बाद में जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे. Here is something we are going to talk about his contributions. More than this novel, we are going to refer on the abolition of English department. His another great contribution was A Giant of Wheat by Ngugi wa Thiong'o. It's a historical novel first published as part of influential African writers series. जो भी African writers जिन्होंने काम किया हुआ था, इसके अंदर ये एक बहुत ही फेमस नावल निकला. The novel short stories set during the state of emergency in Kenya's struggle for independence 1952 to 59, focusing on the quiet Mugu, whose life is ruled by a dark secret. The plot revolves around his home village's preparations for Kenya's Independence Day celebration. और इस नावल के अंदर मुग्गू करेक्टर है दिया गया हुआ है, जिसमें कीनिया, और इसमें एक मुग्गू जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहा है कि भाई अपनी जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है इसको कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, जिसको जो है वो कीनिया में सर्टेनली बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. His other novels or other works was the prize-winning Weep Not Child, is the story of Kikuyu family drawn into the struggle for Kenyan independence during the state of emergency and the Mau Mau rebellion. इसके काम सारे ही आप देखें तो वही स्ट्रगल इंडिपेंडेंस जो अफ्रीका में चल रही थी, इसके ऊपर एक और जो है वो प्राइज विनिंग नॉवल जो है वो वीप नॉट चाइल्ड जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है. Third novel, The River Between, 1965, which was actually written before the others.
tells of lovers kept apart by the conflict between Christianity and traditional ways and beliefs, and suggests that efforts to reunite a culturally divided community by means of Western education are doomed to failure. अब इसके अंदर जो है वो द रिवर बिटवीन इसने शो किया कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है इनके ट्रेडिशंस को ख़त्म करती जा रही है, और इसने सजेस्ट किया कि भाई अपने कल्चर को रीइंफोर्स किया जाए, और जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी कम्युनिटी को डिवाइड करता है, हमारी कम्युनिटी को तबाह करता है, ख़त्म कर रहा है। जिस तरह से अगर हम देखें तो आज भी जो है वो बहुत सारा कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियल रूल नहीं भी है, तो फिर भी जो है वो डिवाइड, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस वक्त डिवाइडेड हैं। Let's begin and talk about his work on the abolition of English department, जो कि हमारी कंसर्न है यहाँ पे। और सबसे पहले द बैकग्राउंड व्यू हम इसका पढ़ते हैं। Expounded the key issues raised by Ngugi wa Thiong'o, Taban Lo Yong, and Henry over Enemba in on the abolition of the English department 1969। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिटरेरी टेक्स्ट कह दें इसको, या आप कहें कि एक प्रपोजल था जो कि इसने अपने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ था। ये इसने अकेले ने नहीं लिखा था, इसके साथ को वर्कर्स भी थे, को ऑथर्स भी थे, जिनके नाम ये लिए हुए हैं। लो योंग हैं, हेनरी ऑन अनिम्बा है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो नगगी वा थियांगो, बिकॉज ही वाज चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट, ही वाज इनिशिएटर ऑफ द वर्क, और सबसे ज़्यादा जो बात की है इस टॉपिक के ऊपर वो इसी ऑथर ने की हुई है। इंग्लिश डिपार्टमेंट अरोज इन अर्ली 20th सेंचुरी, बिफोर दैट द डोमिनेंट लैंग्वेज वाज ग्रीक एंड लैटिन। जिस तरह से आपको पता है कि इस वक्त उस वक्त जब जो है वो 20th सेंचुरी में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता था, ये सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं था बल्कि इवन इंग्लैंड और अमेरिकन स्टेट्स के अंदर भी। मगर just because of the dominancy or emergence of a dominant rule of colonials like England, English became national pride। even जो है वो बहुत सारी और कंट्रीज भी जो है प्राइड फील करती थी जब इंग्लिश में वो बात करें बाद में। The British Empire and its many colonies around the globe initiated English language to show dominancy। और ब्रिटिश एम्पायर ने जाहिर सी बात है अपनी डोमिनेंसी शो करने के लिए अपनी लैंग्वेज जो है वो रीइंफोर्स कराई तकरीबन सब ममालिक में। Nagagi confronted the leaders of the University of Nairobi for its bias or preference for English language। अब English language की वजह से जो है वो नगुगी ने अपनी यूनिवर्सिटी, नैरोबी यूनिवर्सिटी के जितने भी लीडर्स के उनसे जो है वो एक कन्फ्रंटेशन की, उनके खिलाफ जो है वो बात की। 1968 नगगी एंड हिज कलीग्स हेनरी और एनम्बा एंड तबान लो योंग, जैसे पे कि हम पहले बात कर चुके हैं, को ऑथर्ड अ लेटर इंटाइटल्ड ऑन द एबोलिशन ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। इन्होंने ये एक लेटर लिखा था। बेसिकली ये एक लिटरेरी टेक्स्ट नहीं है, एक लेटर है, सिंपल प्रपोजल है, जैसे कि यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दी हुई है, जो कि इन तीन ऑथर्स ने जो है वो एक प्रपोजल बना के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाया था कि इंग्लिश डिपार्टमेंट को अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, और इसकी जगह जो कीनियन लैंग्वेजेस हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। He argues simultaneously for replacing a traditional English department with a department of African literature and languages to revolt against the vestige of British colonial rule। और इन्होंने कोशिश की कि भाई जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से जो इंग्लिश डिपार्टमेंट या इंग्लिश चीज़ें जो है वो इनके ट्रेडिशंस के अंदर हावी हो रही हैं, इनके ट्रेडिशंस को रिप्लेस कर रही हैं, तो इनके ऊपर जो है वो बात की जाए। They suggested that the post-colonial African university must first establish a curriculum of African languages and literatures, and then return to study of European and other world literatures from an African perspective। अब ये एक हकीकत भी है कि भाई जब भी किसी ने अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले तो ये कि प्रेफर किया जाए कि अपनी मदर टंग जो है इसके अंदर करिकुलम है या जो भी सिलेबस है इसको डिज़ाइन किया जाए, उसको पढ़ा जाए, अपनी लैंग्वेज को सीखा जाए। इसके बाद देयर इज़ एन ओपन फील्ड कि हम जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस, जो दुनिया की लैंग्वेजेस हैं वो भी सीखनी चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं है। बट ये जो है वो लैंग्वेज के जितने भी लिंग्विस्ट हैं ये बात कर रहे हैं, या लिटरेरी जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, और रिसर्च से ये साबित हुआ कि भाई सबसे पहले आप अपनी मदर टंग जो है वो इसको सामने लाएं, इसके बाद जो है वो आप
कोई और लैंग्वेज को स्टडी करे. इफ देयर इज नीड फॉर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिक कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल कल्चर, व्हाई कांट दिस बी अफ्रीका, व्हाई कांट African literature be at the center so that we can view other cultures in relation to it. तो इन्होंने ये बात की कि अगर तो हम कल्चर्स की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, तो वो घर से शुरुआत क्यों ना की जाए, और सबसे पहले अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस के ऊपर जो है वो बात क्यों ना की जाए, और जो कि एक रीजनेबल बात भी थी. अब literature describes culture. Just because if literature describes culture, why not we should describe our own culture? Nagagi emphasizes that Africans should use their own literature both to understand their culture and to create continuity with their पास्ट. और इनका फोकस यही था कि भाई अफ्रीकन जितने भी है वो अपने कल्चर को सीखें, और अपना जो उनका माजी है उससे जो है अपने कल्चर के साथ मिलाएं. दिस आल्सो अपीयर्स इन द राइटिंग्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ऑथर्स. और जैसे कि पोस्ट कॉलोनियल जितने भी ऑथर्स थे वो इसी तरह से करते थे. इन 1973 Nagogi became the head of department of literature, newly formed in response to his and his colleagues criticism of English. तो इन्होंने जो है वो 1973 में ये बात की, और उन्होंने कोशिश की जो पहले ऑथर्स हमारे होते थे हम जो है वो कनेक्ट करें अपनी बातें उनसे, ना कि जो है वो एक दूसरी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें. आई ब्लेम, उन्होंने ये इनके ओरिजिनल वर्ड्स हैं इस प्रपोजल के अंदर, आई ब्लेम द ब्रिटिश द एजुकेशन दे गेव, आई ब्लेम टू ऑफर was aimed at recruiting candidates for Christian heaven and at producing clerks, teachers, servants. इन्होंने कहा जी ये दो बातें जो है वो हैं, जैसे कि कॉलोनियल अपनी लैंग्वेज रीइंफोर्स कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, पहले तो वो क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ हम उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे होते, जाहिर सी बात है उनका कल्चर जो है उसको भी हम ऑन कर रहे होते हैं. तो इन्होंने कहा कि भी दूसरी बात ये कि हम जब दूसरी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, इट मीन टू से वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स, टीचर्स एंड सर्वेंट्स. और इसके अलावा यानी हम कोई और बात नहीं कर रहे, सर्वेंट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. और जस्ट बिकॉज अब आप देखें जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे सबसे जो प्रोमिनेंट जॉब है सबके लिए वो टीचिंग है. जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाए, कोई क्लर्क बन जाए, कोई सर्वेंट बन जाए, क्योंकि और काम तो कोई है नहीं कंट्री के अंदर, तो सिवाय इसके कि वो नौकरी की जाए. और अगर वो फॉरेन जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जाके भी नौकरी करते हैं. It is point made less critically a century earlier by English historian and politician Thomas Babington Macaulay in Minutes on the Indian Education 1835. उन्होंने कहा जी यही बात जो है वो इवन इंग्लिश हिस्टोरियंस ने भी की हुई है. थॉमस बेबिंगटन ने ये बात की, मिकॉले ने मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में ये बात की थी कि इंडियन एजुकेशन जो है किस तरह से तबाह हो रही है. इवन आप इंडिया में भी देखें यही हालात है. सर सैयद की बात करें या आप जो है वो पाकिस्तानी जो है वो जो बैकग्राउंड के अंदर बात करें, तो मुस्लिम्स जो है वो उस वक्त हिंदू कम्युनिटी से बहुत बैकवर्ड समझे जाते थे. इसकी वजह ही यही थी क्योंकि अभी मुस्लिम्स ने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट नहीं किया था इसी वजह से. तो यही बात फिर जो है वो जाहिर सी बात है जहां जहां पे कॉलोनियल रूल था वहां पे ये बात हो रही थी. इट इज अ प्रपोजल टू completely remove the English department in University of Nairobi in Kenya, East Africa. तो ये एक प्रपोजल था कि भाई आप नैरोबी कीनिया यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर ये प्रपोजल हुआ कि आप इंग्लिश डिपार्टमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दें और उसकी जगह ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए. द पेपर challenges the idea of English as the central foci of the study of literature and language. और इंग्लिश जो है वो इस जो सेंट्रल फोकस था इसको जो है वो ये जो पेपर इन्होंने जमा करवाया जब प्रपोजल दिया वो एक चैलेंज था. However, 1920 Kenya transformed into British Crown colony. With this, it is essential to note that the English department is a mark of colonialization to which it sneers like a chain to a free country. और 1920 में उन्होंने बात की कि भाई ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी जो है ये तो बिल्कुल ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी कंट्री है, हमारा फ्रीडम है, इसके ऊपर तो एक जहर कातिल है, एक छुरी की तरह है जो कि हमें काट रही है.
The paper highlights that they want to establish the centrality of Africa in the department. उन्होंने कहा जी सेंट्रल डिपार्टमेंट जो है वो अफ्रीका होना चाहिए, फिर चाहे जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स आप ओपन करें. The assumed centrality of the English department suggests that the English tradition and the emergence of a modern West is the central root of our consciousness and cultural heritage. इन्होंने ये बात की. अब ये हम ब्रीफ एनालिसिस में ये बात कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश जो ट्रेडिशंस हैं वो जो है वो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर, हमारी कॉन्शियसनेस को ख़राब कर रही हैं, और इसकी जगह जो है वो वेस्टर्न और मॉडर्न जो वेस्टर्न जो जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो हमारे कंट्री के अंदर जो है वो इन रूट होती जा रही हैं. The English department is a crucial example of staying power of colonial influence that governs the development of their students. और उन्होंने जो है एक एग्जांपल दी, ये दी कि जैसे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये जो है आप देखें कि हमारे जो है वो ट्रेडिशनल स्टडीज़ में या एजुकेशन के अंदर जो है वो कितना अहमियत का हामिल हो चुका है. दिस इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन इज अ हिंड्रेंस टू क्लेमिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री. इन्होंने कहा ये एक हिंड्रेंस है, हम कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर सकते अगर जो है हम फॉरेन एजुकेशन को लें या फॉरेन लैंग्वेज को अपने कंट्री के अंदर राइज करते हैं. It limits the students' chances of knowing their roots. Thus, it will only produce young students who are knowledgeable about their colonizers but ignorant about their roots. तो इन्होंने ये बात की कि अगर तो हम अपने नौजवानों को सिर्फ दूसरी ही लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे, दूसरी एजुकेशन देंगे, तो उनकी जो अपनी रूट्स हैं, जो अपने ट्रेडिशंस हैं, जो अपनी कॉलोनी है, जो अपनी अपना उनका मुल्क है, वो इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और वो कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे कि इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. This abolition of the English department also opens an avenue to place traditional art and literature of Africa into the curriculum. और यही बातें जो है वो आप देखें इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर जो है इनको abolish किया जाए, ख़त्म किया जाए. Since they are promoting the Africanism within Africans, it is a must to look back into the pre-colonial literary text, the traditional oral art. अब अफ्रीकन्स का ज़्यादातर जो है वो ओरल आर्ट के ऊपर फोकस था इससे पहले, क्योंकि अफ्रीकन ज़्यादातर जो स्टोरीज बताते थे वो एक दूसरे को कहानियाँ बताते हुए जो है वो उनकी लैंग्वेज बढ़ रही थी, क्योंकि उनका ख़ास है सच कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर या इस तरह की चीज़ें नहीं थी. तो ओरल ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही फेमस है अफ्रीका में. तो इन्होंने कहा जी अपनी जो ओरल ट्रेडिशन है इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से आप देखें कि जितने भी अफ्रीकन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, और ये लैंग्वेज जो है बगैर किसी हॉल्टिंग के बोलते हैं. इसकी वजह यही है कि इनके यहाँ ओरल आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है. Traditional oral art is a living tradition that at the present time there are songs being sung in political allies at churches. इन्होंने कहा जी हमारे जो ट्रेडिशनल ओरल आर्ट है इसको आगे बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल चीज़ें सारी जो है वो ओरल ट्रेडिशंस के अंदर की जाएं. It will not only concentrate on literature, but also music, linguistics, sociology, anthropology, history, psychology, religion, and philosophy. इन्होंने कहा जितने भी हमारे लिटरेचर्स हैं, जितनी भी एरियाज हैं स्टडी की, इन सब के अंदर वो लिंग्विस्टिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, इन सब के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल जो हमारी लैंग्वेज है या ट्रेडिशनल ओरल आर्ट जो है वो जो भी है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए. The abolition of the English department is necessary to re-establish Africanism of the people, which is partially or totally eroded by the process of colonization. और ये colonization जो है इसने तो अफ्रीकनिज्म को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है. जो ट्रेडिशनल जो पैट्रियटिज्म है इसको जो है वो ख़त्म कर रहा है. सेंटरिंग अफ्रीका एज द हार्ट ऑफ स्टडी फॉर लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, स्टूडेंट्स would promote to the younger generations of African to think Africans. तो हमें जो है वो लैंग्वेज अफ्रीकन पढ़नी चाहिए और लिटरेचर अफ्रीकन से पढ़ना चाहिए, और सोचना एक अफ्रीकन होकर के सोचना चाहिए, ना कि एक वेस्टर्न बन के जो है वो सोचना चाहिए. द मार्क्स ऑफ कॉलोनाइजेशन विल नॉट बी eradicated completely, but the roots of Africans could be reinstated if they are going to prioritize African literature and culture in the students' curriculum. ये कह रहे हैं कि जी अगर तो अफ्रीकन
जो है वो करिकुलम और ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी के बेसिस से पढ़ाई जाती हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि आप कॉलोनियल रूल को ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि जो है वो आप अपनी जड़ें जो है वो इससे मजबूत कर रहे हैं। The worst thing that could happen to a country is to have citizens who are knowledgeable about the whole world but ignorant about themselves. अब ये इनके आखिरी वर्ड्स हैं जो कि मैं पढ़ रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। और ये कह रहे हैं कि जी जो सबसे ख़राब चीज़ है किसी भी कंट्री के अंदर, वो ये है कि आप अपने सिटीजन्स को बाहर की नॉलेज दें, आप अपने सिटीजन्स को किसी और कंट्री, किसी और लैंग्वेज की नॉलेज देते जाएं, और आप खुद के बारे में भूल जाएं कि आप खुद कौन हैं और आप खुद कहाँ से आए हैं। So these are actually the final last words in this proposal, and I believe these are the most meaningful words. The worst thing that could happen to a country is to have citizens who are knowledgeable about the whole world but ignorant about themselves. पूरी दुनिया के बारे में तो जानते हैं मगर खुद के बारे में पता ना हो। Thanks for attention. Thank you very much, students. Hopefully, this would have been very helping for all of you. Assalamu alaikum.